A very pleasant good evening to everyone. Today we all have gathered here for an online yoga workshop. I welcome respected Principal Ma'am Mrs. Kamaljeet Kaur and our resource person Mrs. Sonia Joshi. I request Ma'am Principal to introduce her to everyone. Good evening to all. Good evening. Am I audible, ma'am? It's okay? Good evening, ma'am. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Yeah, it's a matter of great pleasure that today we all are here on this platform to attend the workshop on the yoga as a part of celebrations of International Yoga Day. Yoga is workout which focuses both on mind and body. Yoga adds ears to your life and life to your ears. To make us aware about it on this special evening, I extend heartiest welcome to Mrs. Sonia Joshi, an eminent yoga trainer. I'm grateful to her from the core of my heart for accepting the invitation to conduct a workshop. Mrs. Sonia did diploma in yoga from DAV College and took practical training from Neelkant Yoga Center. She is master's in Ashtanga Yoga and is gold medalist in yoga. She runs the Shivam Yoga Kendra for the last 5 years in the city. She is expert in Hatha Yoga and Power Yoga and delivers the session in association with Punjab Kesari and Doordarshan. She is going to be awarded with the Nari Ratan Award by Punjab Kesari Group on 13th of June for her contribution in the field of yoga and social activities. So congratulations, Madam Sonia. I congratulate you. Thank you, ma'am. Thank you. Here on, from dawn to dusk, we are busy in achieving the targets and hardly give heed to our own fitness. But in the current scenario, it is a need of the hour and be given the topmost priority. So I'm sure that the next 1 hour will be very fruitful to everyone to learn the fitness mantra of life. So not keeping you in wait, once again, I welcome you all and I request Madam Sonia Mago to start the proceedings. Thanks. And my special thanks to Madam Sonia Mago for organizing the event. So anyhow, ma'am, we can start the proceedings. Thank you, ma'am. This is all your blessing and your guidance only. So yoga is a lifestyle and we should live it every day. So over to Sonia Joshi, ma'am. सबसे पहले तो सभी अपने गुरु महाराज को याद करते हुए आंखें बंद करते हुए उनका नमस्कार करेंगे हम आंखें बंद रखते हुए। तो आप सभी ने आज जैसे आप सभी गुरु हो शिक्षक हो तो एक दिन के लिए आज मेरे विद्यार्थी हो तो मेरी आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो आंखें बंद करते हुए पहले प्रार्थना करेंगे अपने गुरु महाराज से अपने इष्ट देव से। तो आंखें बंद करेंगे। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही देवो महेश्वरा गुरु ही साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार करते हुए आंखें खोल। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर शिवम योग केंद्र की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वामी संतदास पब्लिक स्कूल विशेष रूप से स्वामी शांतानंद जी प्रिंसिपल महोदय जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपके स्कूल ने योग के महत्व को समझा और इसकी शुरुआत की, ये एक बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से हर स्कूल को और विश्वविद्यालय को आगे आना चाहिए। तो आज सारे विश्व में
21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से शुरू किया गया था, जिसका आयोजन नरेंद्र मोदी जी ने 2015 21 जून को इसका आयोजन किया। उनके सानिध्य में 35,000 से ज्यादा लोगों ने इसमें भाग लिया था और 85 से ज्यादा देशों ने इसमें भाग लिया था, जिसका रिकॉर्ड आज भी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत की ये धरोहर है, संस्कृति है योगा, जिसको पूरे विश्व में कितनी मान्यता मिली है। वैज्ञानिक तथ्य हैं इसके। ये योग केवल मन के लिए शरीर का व्यायाम नहीं है, ये साबित हो चुका है वैज्ञानिक रूप से कि मन, आत्मा, शरीर, आध्यात्मिक, आपने किसी भी चीज में सफलता हासिल करनी है तो योग के साथ जरूर जुड़िए। तो आज हम जिस योग की चर्चा करने जा रहे हैं, महर्षि पतंजलि द्वारा निर्मित अष्टांग योग है, जिसके 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग, जैसे आप स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं, ये बचपन से अगर हम योगा को उनके लिए कंपलसरी कर दें तो ये 8 अंग बच्चे सीख सकते हैं। जो जीवंत आसन होते हैं वो योगी कर सकते हैं, जो योगा कर लेते हैं, सूक्ष्म व्यायाम जिनके शरीर में लचीलापन आ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, वो कर सकते हैं। वो किसी रोग के लिए किए जाते हैं। तो आज चर्चा जो हम करेंगे वो हम सूक्ष्म व्यायाम से करेंगे। तो आपने सबसे पहले, मैं सभी आसनों के 2-2 स्टेप करूंगी या किसी के 5 करेंगे हम। मैं इस तरीके से आज आपको सिखाने की कोशिश करूंगी कि आपको योगा आसान भी लगे और आप डेली रूटीन में उसको फॉलो भी करना शुरू कर दो। तो सभी के जैसे हम स्टार्ट करेंगे सूक्ष्म व्यायाम से। तो सबसे पहले हम पैरों से स्टार्ट करेंगे। जिनको पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहती है, जैसे इस तरफ मैं करते हुए आपको दिखाऊंगी। आप चाहे तो अपने कोई भी मैट, दरी कुछ भी बिछाकर बैठ करके मेरे साथ साथ कर सकते हो। नहीं तो आप इनको देखिए, समझिए कि योगा कितना आसान है। आप देखिए, इसके लिए मेरे पास किसी भी इक्विपमेंट है, कोई मशीन है, इसके लिए क्या चाहिए? सिर्फ एक मैट और आपके पास एक जगह होनी चाहिए। इसके अलावा इसके लिए हमारे पास और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं आज के दिन इतनी कोशिश करूंगी आप सभी के साथ कि आप योगा को इतनी आसानी से समझा सकूं कि आप अपनी डेली रूटीन में इसको फॉलो कर सको। तो जिनके पैरों में बहुत दर्द रहता है, जैसे आप टीचर्स हो, आप सारा दिन चेयर पर बैठते हो, आपका काम बहुत मुश्किल है, तो पैरों के दर्द के लिए आपको इनहेल करते हुए पैर, ये सूक्ष्म व्यायाम है सभी, इनहेल करते हुए आगे की तरफ लेके जाना है और एक्सेल करते हुए अपनी तरफ लेके आना है। पैरों से स्टार्ट करें हम। बैक बिल्कुल सीधा, इनहेल करते हुए फिर से आगे की तरफ, देन एक्सेल करते हुए अपनी तरफ, फिर से इनहेल करते हुए, इसको आप 5 बार कीजिए कम से कम। इनहेल करते हुए फिर से पूरा आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, देन एक्सेल करते हुए अपनी तरफ 3, फिर से इनहेल, सांस गहरा भरते हुए। सांस को उसी ने रोकना है जिनको हाई बीपी नहीं है। जिसको हाई बीपी है उन्होंने सांस को नहीं रोकना ज्यादा देर तक। देन फिर से इनहेल करते हुए अपनी आगे की तरफ, एक्सेल करते हुए अपनी तरफ। साथ साथ में आपको मैं इनके बेनिफिट्स भी बताऊंगी। आप योग कीजिए साथ साथ में और इसके बेनिफिट्स भी समझिए। मैं इनहेल करते हुए दोनों पैरों को ऐसे इस तरह से सर्कल को बनाएंगे। इनहेल 1, पूरा सर्कल बनाएंगे। इनहेल 2, इनहेल 3, इनहेल 4, आंखें बंद करते हुए श्वास भरते हुए इनहेल 5। राइट, कितना आसान था, ये सभी कर सकते हैं। सुखासन में लौट आएंगे। अभी हम बैठने वाले सभी करवाएंगे। मैं वो करवाऊंगी जो इजिली आप लोग सभी कर सकते हो। सुखासन मीन्स आपको स्थिरम सुखम आसनम, मीन्स आप जिसमें भी बैठ सकते हो। अगर आपके नीज में पेन है, बैक में पेन है, आप पीछे सपोर्ट करके भी बैठ सकते हो। हाथों के सभी आसन कीजिए जो सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे आप चेयर पर बैठे रहते हो, टीचर्स का काम बहुत मुश्किल है,
एक बच्चे को रखना माँ बाप को कितना मुश्किल होता है, जब 30, 40 या 100 बच्चे होते हैं क्लास में, वो सभी अपने बच्चों के जैसे ही होते हैं, तो उनके लिए योग तो बहुत जरूरी है, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो बैक बिल्कुल सीधी रखते हुए दोनों हाथ आपस में जोड़ेंगे, इनहेल करते हुए पूरा पीछे की तरफ ले जाएंगे। ये आप किसी भी पोजीशन में बैठ के कर सकते हो। एक्सेल करते हुए वापस, आप चाहे चेयर पे बैठे होते हो तब भी। इनहेल टू, एक्सेल, एक्सेल। इस तरह से आज जैसे मैंने आपको ये 5 टाइम करवाया है, आप इनको बढ़ा के, ये जो सूक्ष्म जितने भी व्यायाम मैं आपको बता रही हूँ, शॉर्ट एक्सरसाइज, आप इनको बढ़ा के अपनी स्टेमिना के हिसाब से 10 टाइम कर सकते हो, देन 15 टाइम कर सकते हो। इसमें आपका कोई जोर नहीं लग रहा है। जिनको घुटने में या किसी भी, जिनको पेन्स हैं, जिनको जॉइंट पेन्स हैं, वो सभी ये कर सकते हैं। हाई बीपी वाले सभी, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी कर सकते हैं। तो ये मैं इसलिए करवा सकती हूँ। पर इसके बाद हम मुख्य आसन होंगे। एक्सेल करते हुए वापस गहरा श्वास लेते हुए फिर से इनहेल, यहाँ पर सांस को कुछ देर के लिए रोकेंगे, देन एक्सेल करते हुए वापस इनहेल 3, आंखें बंद रखते हुए सांस के साथ जुड़ते हुए योग पूरा का पूरा श्वास पर केंद्रित है। इनहेल 4, एक्सेल, इनहेल 5, एक्सेल। नाउ रिलैक्स। सुखासन में जब लौटेंगे डीप ब्रीथिंग करेंगे। डीप इनहेल, आंखें बंद रखते हुए कम से कम आप मेरे साथ डीप ब्रीथिंग के साथ जुड़िए। मेरी आवाज को सुनते हुए आप मेरी इंस्ट्रक्शन को प्लीज फॉलो कीजिए। इनहेल, डीप इनहेल, लंबा गहरा श्वास जब भी भरना है तो बिल्कुल रिलैक्स फील करते हुए करना है, और जब छोड़ना है तब भी आपने रिलैक्स फील करना है। फिर से डीप इनहेल, गहरा श्वास भरेंगे, फिर से छोड़ देंगे। ये शॉर्ट एक्सरसाइजेस हम सभी कर रहे हैं, ये बैक पेन के लिए, सर्वाइकल के लिए, जिनके गर्दन में दर्द रहती है उनके लिए बहुत अच्छी है। नेक्स्ट मैं करवाऊंगी, ये भी सूक्ष्म व्यायाम है। इनहेल करते हुए अपने हाथों को अपने कंधों पर रखेंगे, एक्सेल करते हुए वापस इनहेल 2, गहरा श्वास भरते हुए, देन एक्सेल, इनहेल 3, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, एक्सेल, इनहेल 4, एक्सेल, 5, एक्सेल। अब यही साइड से इनहेल 1, गहरा श्वास भरते हुए यहाँ पर कंधों पर हाथ रखेंगे, एक्सेल, इनहेल 2, एक्सेल, इनहेल 3, एक्सेल, इनहेल 4, एक्सेल, इनहेल 5, एक्सेल। रिलैक्स, सुखासन लौट आएंगे। ये आप चाहे तो आप बीच बीच में जब भी आपको थकावट फील हो, बैक पेन हो, लगे कि सर्वाइकल हो रहा है, तो आप चेयर पर बैठ के बड़े आराम से ये आसन कर सकते हो आप। अब नेक की करेंगे एक्सरसाइज। इनहेल करते हुए सिर को पूरा ऊपर ले जाएंगे, आंखें बंद, बैक बिल्कुल सीधा। एक्सेल करते हुए सिर को पूरा नीचे ले आएंगे, अपनी चिन को चेस्ट के साथ लगाने की कोशिश करेंगे।
फिर से इनहेल 2, गहरा श्वास भरते हुए पूरा पीछे की तरफ। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे, बिल्कुल जैसे जैसे अपने सिर को नीचे लाएंगे वैसे वैसे श्वास को छोड़ते जाएंगे। बैक बिल्कुल सीधी रहेगी। फिर से इनहेल 3, गहरा श्वास भरेंगे। देन धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 4, एक्सेल हुए सिर को पूरा ऊपर ले जाएंगे। देन एक्सेल करते हुए पूरा नीचे। रिलैक्स, सुखासन में लौट आएंगे। सुखासन मीन्स जिसमें बैठकर आपको सुख महसूस हो। कैसे भी, जिनको नीज पेन है वो पीछे बैक लगाकर लेग सीधी भी रख सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है कि ऐसे बैठना जैसे मैं बैठी हूँ। अब इनहेल करते हुए पूरा राइट साइड पीछे देखेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे पूरा पीछे देखेंगे। आंखें बंद करते हुए एक्सेल करते हुए वापस। देन लेफ्ट इनहेल, पूरा पीछे देखेंगे। आंखें बंद करते हुए एक्सेल करते हुए वापस। देन फिर से राइट इनहेल, आंखें बंद करते हुए एक्सेल करते हुए वापस। लेफ्ट इनहेल, आंखें बंद करते हुए वापस लौट आएंगे। नाउ रिलैक्स। फिर से आप अपने श्वास के साथ जुड़िए। डीप ब्रीथ कीजिए। डीप इनहेल। जब भी लंबा गहरा श्वास करना है, अंदर से फील करना है कि शांत, एकदम से शांति आ रही है। जब छोड़ना है तो फील करना है जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जैसे किसी को मेंटली है, किसी को फिजिकल है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जाते देना है। फिर से डीप इनहेल, गहरा श्वास करेंगे। नाउ रिलैक्स, फील करते हुए एक्सेल। अब सभी खड़े होंगे। ये हमने सभी सूक्ष्म व्यायाम जो किए हैं ये वार्म अप है, इसको वार्म अप भी कहते हैं, इनको वार्म अप एक्सरसाइजेस भी कहते हैं। अब सभी प्लीज खड़े हो जाइए अपने मैट के ऊपर, या किसी भी चीज पर नहीं भी हो कोई बात नहीं। तो खड़े होने वाले हम सभी करेंगे आसन। खड़े होने में तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणासन से। राइट हैंड को इस तरह से सीधा रखते हुए लेफ्ट हैंड जितना नीचे जा सकता है उतना नीचे जाएगा। राइट हैंड पूरा ऊपर की तरफ। इनहेल करते हुए, देन एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ। 1, ये हमारा एक चक्र हुआ। राइट, देन फिर से इनहेल 2, गहरा श्वास भरते हुए जितना आप झुक सकते हो। देन एक्सहेल, इनहेल 3, गहरा श्वास भरते हुए पूरा झुकेंगे। सभी कर सकते हैं, सभी को करना चाहिए। देन एक्सहेल, इनहेल 4, एक्सहेल, इनहेल 5, एक्सहेल। फर्स्ट है आप ये 5, जैसे मैंने अभी 5 किए हैं तो आप ये 5 करो। इससे कमर की जो साइड की जो चर्बी होती है ना, फैट्स होती है, वो कम होती है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। बैक पेन ठीक होता है, सर्वाइकल ठीक होता है इससे। तो जैसे अभी मैंने आपके सामने 5 चक्र किए हैं, तो ये आप स्टार्ट जब करोगे, बिगनर्स हैं तो पहले दिन आप 5 करो, देन 10 करो, फिर 15 करो, इनको बढ़ाते जाओ।
तो जब हम जिम जाते हैं वहां पर भी वो पकड़ा देते हैं ना एक डंडा सा, तो उसका क्या फायदा, हम घर पे ही कर सकते हैं। ये त्रिकोण आसन है, वो सेम चीज है, तो इसमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा एफर्ट लगता है, उल्टा अपने बॉडी का वेट उठा रहे। योगा क्या है कि हम अपनी बॉडी का भार खुद उठा रहे। चलो नेक्स्ट करते हैं ताड़ासन। बच्चों की हाइट के लिए ये बहुत अच्छा आसन है, इससे बच्चों की हाइट बढ़ती है, जीवन में संतुलन आता है, जिसकी आज की डेट पर कमी है। तो स्टार्ट करेंगे, दोनों फिंगर्स को लॉक करेंगे, पैरों को आपस में जोड़ लेना है, सिर के ऊपर रखेंगे, इनहेल करते हुए पूरा ऊपर की तरफ आपने स्ट्रेच करना है, और एक दिशा पर देखते हुए, एक जगह पर देखना है आपने, एक बिंदु की तरफ देखते हुए। इससे संतुलन आता है शरीर में और मन में, दोनों में संतुलन आता है। देन एक्सहेल करते हुए सिर के ऊपर ही रख लेंगे हाथों को। फिर से इनहेल टू, पूरा लंबा गहरा श्वास भरते हुए एक तरफ देखते हुए, देन एक्सहेल। इनहेल 3, exhale. Inhale 4, exhale. Inhale 5, exhale. और जिनको हाई बीपी रहता है उन्होंने इसको फास्ट स्पीड में करना है। जैसे इस तरह से अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे, ये जो हमारी पिंडलियां हैं इसको दूसरा हार्ट कहते हैं, तो आपने इसको ऊपर ले जाना है और ऐसे इस तरह से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जिनको हाई बीपी है तो उन्होंने इस तरह से फास्ट फास्ट, ताकि आपकी इस पर ये जो नीचे की पिंडलियां हैं इन पर दबाव पड़े, इससे बीपी ठीक होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं पादोहस्तानासन। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए आपने नीज को मोड़ना नहीं है, हाथ पैरों की तरफ, अपने घुटने बिल्कुल नहीं मोड़ने आपने, इस तरह से सीधे रखेंगे। फिर से इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए पूरा नीचे की तरफ। फिर से इनहेल 2, लंबा गहरा श्वास भरते हुए छोड़ते वक्त पूरा नीचे। इनहेल 3, लंबा गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ते वक्त पूरा नीचे की तरफ झुकना है। इनहेल 4, एक्सहेल। इनहेल 5, गहरा श्वास भरते हुए छोड़ते हुए नीचे की तरफ। नाउ रिलैक्स। चक्रासन हर कोई नहीं कर सकता है। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो बैक पेन के लिए है, सर्वाइकल के लिए है, खड़े होकर ही करने वाला है। ये अर्ध चक्रासन है। बैक को पीछे से इस तरह से रखेंगे हाथों को और पूरा पीछे की तरफ झुकेंगे इस तरह से। इनहेल 1, एक्सहेल करते हुए वापस आंखें बंद। फिर से इनहेल 2, then exhale. Relax. Inhale 3, exhale. Inhale 4, exhale. अब इसको बढ़ाते बढ़ाते 10 टाइम 15 टाइम ये थे सभी खड़े होकर वाले आसन। ये थे सभी खड़े होकर करने वाले आसन जो कि सभी कर सकते हैं। और जिनको हाई बीपी रहता है या हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि उन्होंने कुंभक नहीं लगाना है। कुंभक मीन्स आपने श्वास को रोकना नहीं है।
कम से कम रोकना है। और जिनको हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उन्होंने जोर जोर से सांस नहीं लेना। जैसे जैसे जो भी मैंने आसन किया, फॉर एग्जाम्पल हमने ये किया है त्रिकोणासन, इनहेल किया है बिल्कुल धीरे से। उन्होंने जितनी शांति से आसन करेंगे, जितना धीरे धीरे इनहेल करेंगे और एक्सेल करेंगे, और उतना ही उनका बीपी ठीक होगा। और अगर वो ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते, तो उनका बीपी बढ़ने लग जाएगा। तो श्वास का पूरा ध्यान रखना है अपने योग में। योग चलता ही श्वासों के साथ। तो नेक्स्ट में जो करने, वैसे तो 85 कहते हैं ना कि इंसान को 85 करोड़ योनियों के बाद इंसान का जन्म मिलता है। तो ये जो हमारे योगा है, इसके आसन 85 करोड़ ही थे, जो कि कम होकर अब 85 रह गए हैं, सिर्फ 85 रह गए हैं। तो इनको ही हम सीख लें या उनमें किसी एक में ही सिद्धि कर लें। जैसे अभी मैंने ताड़ासन किया है, या जो ये वृक्ष आसन है जो अभी मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ, फिर मैं बाद में इसका लॉजिक समझाऊंगी आपको कि क्या लॉजिक है। राइट पैर को हम जोड़ते हुए इनहेल करते हुए, ये भी संतुलन का आसन है। एक तरफ देखते हुए पूरा ऊपर की तरफ ध्यान केंद्रित करना, देन एक्सेल करते हुए वापस। ये भी मन और शरीर दोनों में संतुलन लेके आता है। देन इसी को हम दूसरी तरफ करेंगे सेम। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस को नॉर्मल ब्रीदिंग, सिर्फ एक तरफ देखना आपने। ये है वृक्षासन। सभी आसनों के नाम या तो पेड़ पौधों पर है या जानवरों पर है। इसका एक रीजन है। 85 आसन है। इसका रीजन ये है कि जैसे ये अभी मैंने वृक्ष आसन किया है, अब मैं कितनी देर, हम ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड खड़े होते हैं, जो ज्यादा योगी होगा 15 सेकंड खड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ये बात समझे, नाम क्यों रखा है वृक्षासन, कि जब हम उनको काटते हैं तो ये देखिए कि वो कैसे खड़े रहते हैं, और खड़े रहकर बिना किसी स्वाद के हमें क्या क्या दे रहे हैं। वो आजकल कोरोना काल में तो हमें समझ आ ही गया है कि जो प्रॉपर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है जी, ये वृक्षों को काटने से, ये वृक्ष आसन करने से पता चल रहा है कि वृक्षों की क्या अहमियत है। हमें 10 सेकंड नहीं खड़े हो सकते इसमें। तो तभी सभी आसनों के नाम जानवरों पर, पेड़ पौधों पर रखे गए। तो नेक्स्ट करते हैं हम वज्रासन। इसमें बैठ जाएंगे। बहुत अच्छा आसन है। खाना खाने के बाद जो एकमात्र आसन किया जा सकता है वो यही आसन है। अगर आप इस आसन में खाना खाने के बाद बैठते हो तो आपको उतना ही लाभ मिलेगा जितना वॉक करने के बाद मिलता है। जिनको घुटनों में पेन रहता है वो इसके नीचे पिलो रख सकते हैं, यहाँ पर पिलो रख सकते हैं, फिर उसके ऊपर बैठ सकते हैं, फिर वॉक करने की जरूरत नहीं है। इसमें बैठ करके डीप ब्रीदिंग, डीप इनहेल, गहरा श्वास करेंगे और छोड़ देंगे। फिर से डीप इनहेल, गहरा श्वास करेंगे और छोड़ देंगे। अर्धउष्टासन करेंगे। दोनों नीज में गैप रखेंगे और घुटनों पर खड़े होना है आपने। लेफ्ट वाले पैर को पकड़ते हुए राइट हैंड से पूरा ऊपर देखेंगे। जिनको नीज की प्रॉब्लम है वो ये आसन नहीं कर सकते हैं, उन्होंने नहीं करना। देन एक्सेल करते हुए इसी तरह से दूसरी तरफ, इनहेल 2, एक्सेल। अब करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन। उष्ट्रासन ये भी एक जानवर पर नाम रखा गया है, ऊंट का, कैमल, जो आपने देखा होगा, ऊंट, ये उसकी आकृति बनाता है ये आसन, इसलिए इसका नाम उष्ट्रासन है। तो हमें पता चलेगा कि ऊंट कैसे जीवन है उसका। तो इंसान को इसीलिए योग करना चाहिए क्योंकि उनको महत्व पता, वो झुकने वाले काम ज्यादा करते हैं। बेसिकली हम आगे ऐसे झुके रहते हैं जिसकी वजह से हमें सर्वाइकल होता है, बैक पेन होता है, सभी इसी के कारण यही एक शुरुआत होती है हमारी सर्वाइकल की। जब रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है ना, प्रॉब्लम जड़ हमारी हड्डी ही है, रीढ़ की हड्डी ही है, तो जब वहां प्रॉब्लम आती है ना, वहीं से सारी पूरी बॉडी में प्रॉब्लम जाती है। तो हम आगे तो झुकते रहते हैं, पीछे झुकने का कोई सोचता नहीं है।
तो ये जो हमने अभी उष्ट्रासन किया, एक बार फिर से करके दिखाऊंगी। दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ते हुए पूरा पीछे झुकेंगे। तो एक्सेल करते हुए वापस वज्रासन में लौट आएंगे। स्टार्टिंग में अगर आप नहीं भी कर पाओगे, लेकिन जैसे जैसे जो मैंने आपको पहले स्टेप सिखाया था सूक्ष्म व्यायाम, वो आपने 10-15 दिन पहले वही करने, सिर्फ वो हाथों की पूरी एक्सरसाइजेस, पैरों की। आपने ये जो मैं अब सिखा रही हूँ, ये है जीवंत आसन, जीवन मुख्य आसन। इसके बाद जो मैं करवाऊंगी वो मुख्य आसन होंगे, वो किसी रोग के लिए होते हैं या फिर बहुत जो योगी होते हैं उनके लिए होते हैं। तो अब जो मैं कर रही हूँ ये एक नेक्स्ट लेवल है। जो पहले मैंने किया था वो सूक्ष्म व्यायाम था, शॉर्ट एक्सरसाइज। 15-20 दिन, महीना आपने वही करना है। हाथों को गोल गोल घुमाना ब्रीदिंग के साथ, हाथों की ये वाली एक्सरसाइजेज, हाथों की ये वाली एक्सरसाइजेज, इनहेल करते हुए ये 10 टाइम करेंगे, इधर से 10 टाइम, देन ये पूरा सर्कल बनाएंगे। ये 15-20 दिन, एक महीना, जब तक आपका वेट नहीं रिड्यूस हो जाता, आपको लगता नहीं है कि हम बिल्कुल स्लिम हो गए हैं, हम परफेक्ट हैं, अब देन नेक्स्ट लेवल पे जाना है। आमतौर पर क्या होता है, योगा जो सेंटर्स होते हैं वो क्या गलती करते हैं, लोग क्यों नहीं जुड़ पाते योग के साथ। मैंने इसका बहुत सर्वे किया, इसलिए क्योंकि वो जाते ही पहले सेकंड लेवल ले जाते हैं। जैसे हम बच्चे को ABCD से सिखाना शुरू करते हैं, एंड में जेड आएगा, वो जेड पे पहले ही ले जाते हैं, तो लोग डर जाते हैं। लोग सोचते हैं मैं तो ये कर नहीं सकता, वहां शर्म भी आती है लोगों को कि मैं तो ये कर नहीं पा रहा हूँ या मैं कर नहीं सकता हूँ, इसलिए योग से लोग पिछड़ जाते हैं। सही मायने में योगा सेंटर्स में ये सिखाया ही नहीं जाता कि स्टार्ट जो वो करवाएं जो हर कोई कर पाए। अभी जो मैंने उष्ट्रासन किया ये नेक्स्ट लेवल है, ये आप सबने नहीं करना है। जो बिल्कुल हेल्दी होगा, बच्चे होंगे आपके स्कूल में पढ़ते हैं, वो कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले सूक्ष्म व्यायाम से ही स्टार्ट करना है, देन इस लेवल में आना है आपने। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे चक्की संचाल आसन, जो कि लेडीज के लिए एक बहुत ही अच्छा आसन है। दोनों हाथों को लॉक करेंगे, राइट पैर से स्टार्ट करेंगे, पूरा आगे झुकना है और इनहेल करते हुए एक्सहेल करते हुए पूरा पीछे। बहुत ही अच्छा ये आसन है। इनहेल करते हुए पूरा आगे, 2, देन एक्सहेल करते हुए पीछे, 3, पूरा आगे झुकेंगे, 4, देन 5। ये जैसे जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, ये लेडीज के लिए बेस्ट है। जेंट्स भी कर सकते हैं, पेट कम होता है उनका। देन फिर से आगे पूरा झुकते हुए, 1, 2, 3, 4, पूरा आगे झुकना है जितना आप झुक सकते हो। देन 5, ये जैसे मैंने 5 राउंड किए हैं दोनों तरफ। स्टार्टिंग में आप 10 भी कर सकते हो, आपने 10 करने रोज बैठ के नीचे, और सूक्ष्म व्यायाम। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं करने जा रही हूँ वो पश्चिमोत्तान आसन है। वो सभी कर सकते हैं, वो जिनको हाई बीपी है या जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कोई भी मीन्स, चाहे किसी को ये आसन बड़ा है लेकिन कर सकता है, हर कोई कर सकता है। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, गहरा श्वास करना है। देन एक्सहेल करते हुए हाथ पैरों की तरफ, पैरों को पकड़ना है। जिनका हाथ पैरों तक नहीं जाता है, कहीं भी जहां भी जा रहा है वहीं झुक जाना है, पूरा नीचे की तरफ झुकना है। सांस को रोकना है कुछ देर के लिए, जिनको हाई बीपी है उन्होंने नहीं रोकना है, पूरा झुक जाएंगे आगे। फिर से इनहेल 2, गहरा श्वास भरेंगे, देन एक्सहेल करते हुए पूरा नीचे की तरफ। इनहेल 3, एक्सहेल, इनहेल 4, एक्सहेल। आप जैसे बैठे हुए हो करो सभी। इनहेल 5, एक्सहेल। तो इसको जैसे अभी मैंने 5 टाइम किया है, तो आपने स्टार्टिंग में इसको 10 टाइम कर सकते हो ब्रीदिंग के साथ। हाई बीपी वाले बिल्कुल लेदार ब्रीथ के साथ, जैसे बिल्कुल आराम से श्वास करना है, बिल्कुल धीरे से, आनंद लेते हुए, शांति से। देन एक्सहेल करते पूरा आगे की तरफ। जिनका बीपी नॉर्मल रहता है वो फास्ट भी कर सकते हैं,
वेट ज्यादा है जिनको, इससे पेट कम होता है, वेट कम होता है। आसन तो बहुत ज्यादा है, अगर एक दिन में चाहे, एक घंटे में चाहे तो इतना सीख नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते। जितने मेन आसन थे वो हमने किए हैं। इसके बाद हम लेटने वाले, मैं आपको कुछ आसन समझाऊंगी जो कि डेली रूटीन में, जैसे ये पश्चोत्तान आप ऐड कीजिए, सूक्ष्म व्यायाम ऐड कीजिए, और इसके बाद ये पश्चोत्तान, उष्टासन नहीं, वो वही जो ठीक है। ठीक है, अब लेटने वाले हम करेंगे। लेटने वाले में आपने इनहेल करते हुए लेग सीधी ऊपर उठाएंगे, बिल्कुल, ये अर्ध हलासन है। एक्सेल करते हुए वापिस धीरे धीरे, फिर से इनहेल 2, एक्सेल, राइट। अब रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे पवन मुक्तासन, 2-2 बार। ये मैं लेटने वाले आपको सभी 2-2 बार समझाऊंगी। इनहेल करते हुए पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे हाथों को, देन एक्सेल करते हुए अपनी नीज को पकड़ते हुए, घुटनों को पकड़ते हुए अपने पेट की तरफ लेके आएंगे, माथे को अपने घुटनों के साथ टच करेंगे। फिर से गहरा श्वास भरते हुए इनहेल 2। जिनको सर्वाइकल है उनको जरूरी नहीं है कि उन्होंने सिर को उठाना है, सिर्फ नीचे ही रहने देंगे। इनहेल 2, गहरा श्वास भरते हुए पवन मुक्तासन, फिर से पेट की तरफ अपने नीज को खींचेंगे। फिर से इनहेल 3, एक्सेल, इनहेल 4, exhale, inhale 5, exhale. Now relax. नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है शवा। डेली रूटीन में आपने पवन मुक्तासन जरूर ऐड करना है। अभी जो हमने अर्ध हलासन किया है वो भी करना है। 5-5 सेट आपने 3 टाइम करने हैं। 5 बार लेग्स को ऊपर उठाना है, 3 बार। पवन मुक्तासन भी स्टार्टिंग में 5 बार आपने करना है, 3 बार। ठीक है, अब शवासन में, शवासन मीन्स आपने बिल्कुल जैसे अपने हाथों पैरों को ढीला छोड़ देना है। ये आसनों का राजा है। हाई बीपी के लिए, सबके लिए आपने इस तरह से, जैसे आप ऑफिस में होते हो, ये तनाव को कम करता है। आप टीचर्स हो तो जरूर ये आसन अपनी रूटीन में ऐड करो। नीचे बिछाना है आपने मैट को और सीधे बिल्कुल ऐसे जैसे माँ की गोद में लेटते थे, जो फीलिंग तब होती थी वो आपने फील करना है। हाथ पैर बिल्कुल ढीले छोड़ देने। घड़ी में अलार्म लगाते हुए आपने ये शवासन 5 मिनट के लिए करना है। देन राइट तरफ साइड पर करवट लेते हुए उठ जाएंगे और फिर से सुखासन में बैठेंगे। नाउ नेक्स्ट करेंगे, अभी आप ये सभी मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। अभी हम करने लगे हैं प्राणायाम। प्राणायाम मीन्स प्राणों का आयाम। ये जो हमारी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो श्वास, आज की डेट में हमने कोरोना काल में यही सुना है कि प्रॉब्लम ब्रीदिंग से ही हो रही है, और क्या है। उसके लिए ये बहुत जरूरी है, ये मेडिसिन है एक तरह की। कोरोना की लगा लो, वैसे लगा लो, हर साल अगर आज भी हम अपने बच्चों को योग की तरफ नहीं लेके जाएंगे तो ये महामारियां तो आती रहेंगी। अब तो हमें इतना प्रिपेयर हो जाना, अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग बना लेना है कि कोई कुछ भी आ जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। आयुर्वेद की तरफ बढ़िए, योग की तरफ बढ़िए। प्राणायाम करेंगे, बैक सीधी, आंखें बंद, रिलैक्स। इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। जो फर्स्ट वाली फिंगर है ये आपने अपने अंगूठे के साथ टच करते हुए बाकी वाली फिंगर सीधी रखनी है। इस ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, आंखें बंद रखते हुए डीप ब्रीदिंग करेंगे कुछ देर के लिए। गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ देंगे। रिलैक्स फील करते हुए फिर से कम 5 बार आपने डीप ब्रीदिंग जरूर करना है हर प्राणायाम के इन बिटवीन। जब आप थक जाओ प्राणायाम में तब भी, जब आप प्राणायाम को खत्म कर दो तब भी, स्टार्ट करो तब भी। तो फिर से डीप इनहेल, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, रिलैक्स फील करते हुए, देन एक्सहेल। फिर से डीप इनहेल,
exhale. स्टार्ट करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। कपाल मीन्स सिर, हेड, जो माथा है हमारा। भाती मीन्स प्रकाश, जो हमारे दिमाग में प्रकाश जला दे, जो हमारे दिमाग को जागृत कर दे, चैतन्य कर दे, उसको कपाल भाती प्राणायाम करते हैं। इससे कुंडलिनी जागृत होती है। सुना होगा आपने कि कुंडलिनी भी एक शक्ति होती है जो कि मेरुदंड से नीचे से स्टार्ट होते होते आज्ञा चक्र तक पहुंचती है, देन सहस्त्रार चक्र तक आती है। तो कपाल भाती से हमारे दिमाग में, हृदय में एक प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसके लिए हमने जन्म लिया है। कमाना, पैसा, भौतिकवाद, ये सब जरूरी है, हर चीज जरूरी है, फैसिलिटी सब, मैं ये नहीं कहती कि नहीं है, लेकिन मेन जो एम्बिशन होता है इंसान का, भगवान के हम यहाँ पैदा क्यों हुए हैं, ये एक क्वेश्चन है। उसका वही आंसर है कि भगवान ने हमें क्यों भेजा है, उनके साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब इतना ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है लाइफ का कि हम धीरे धीरे प्रकृति से और भगवान से कटते जाते हैं। उसी का ये एक रीजन है कोरोना, कि हम प्रकृति से इतना कट गए, इतनी ज्यादा सफाइयां की, इतना एसी लगाया कि वीक होते चले गए। इसका मीनिंग ये नहीं है कि हमें गंदे रहना है, इसका मीनिंग ये है कि कुछ समय के लिए हमें सूरज की रोशनी में भी जाना जरूरी है, मिट्टी में जाना भी जरूरी है, बाहर निकलना जरूरी है, एसी में एक्सरसाइज नहीं करनी है, हमें योग की तरफ बढ़ना जरूरी है, आयुर्वेद की तरफ बढ़ना जरूरी है। ये एक रीजन था कोरोना के आने का। तो हम उसको योगा से और आयुर्वेद के साथ जुड़कर खत्म कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम कपालभाति। इसके 30 आपने पहले करने हैं, तो उस 30 करने के बाद आपने रुकना है, देन फिर से 30 टाइम करना है जो बिगनर्स है उनके लिए। तो इस तरह से आपने ज्यादा जोर जोर से तेज तेज से नहीं करना है, इस लय में करना है। जब भी बीच में रुकना है तो आपने बीच बीच में डीप ब्रीथिंग करते रहना है, गहरा श्वास करना है, बिल्कुल धीरे से, लंबा गहरा श्वास इतना आप भर सकते हो, देन एक्सेल करेंगे बिल्कुल धीरे से, रिलैक्स फील करते हुए। फिर से डीप इनहेल। स्टार्टिंग में आपने इतना ही करना है, इसको धीरे धीरे आपने बढ़ाते जाना है। जैसे स्टार्टिंग में आप 5 मिनट करो, देन 10 मिनट करो, देन एटलीस्ट 10 मिनट तो आपको रोज करना ही करना है, क्योंकि अगर आप बाकी के आसन बीच में ऐड करोगे तो 1 घंटे का टाइम लगाकर चलो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आसनों को आप स्किप कर दीजिए, वो करने जरूरी नहीं है। लेकिन ये प्राणायाम जो मैं अभी आपको करवा रही हूँ, ये मेन बेस है योग का, यही योग है। तो ये इसको आप स्किप नहीं करना है, कि आपने ये सोचना है कि जैसे खाना खाना जरूरी है, उसी तरह से योग, खाना खाना भूल जाएंगे आप। आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर एक संकल्प लोगे कि हम खाना खाना भूल जाएंगे, योग नहीं भूलोगे, तभी मैं समझूंगी कि मेरा योग सफल हुआ, मतलब योगा सफल हो गया, मेरा करवाना सफल हुआ और आपका करना, आपका देखना समझना सफल हुआ। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का एक यही रीजन रहा होगा, या एक यही कारण है कि आप इस दिन संकल्प लें कि हम 1 साल पूरा योग करेंगे। फिर तो आदत ही पड़ जाएगी, फिर आप खाना खुद ही खाना भूल जाओगे, आप योग करना नहीं भूलोगे कभी भी। फिर से एक बार करेंगे यही 30 टाइम। तो आप मेरे साथ कीजिए, स्टार्ट कीजिए।
रिलैक्स। फिर से आंखें बंद रखते हुए डीप इनहेल, लंबा गहरा श्वास भरेंगे और रिलैक्स फील करते हुए एक्सहेल कर देंगे। फिर से डीप इनहेल, गहरा श्वास भरेंगे, रिलैक्स फील करते हुए, देन धीरे से आपने इसको छोड़ देना है सांस को। कपाल भाती में आपने एक्सहेलेशन की तरफ ध्यान देना है। इनहेल वही जो नॉर्मली जा रहा है, आपने सांस को बाहर छोड़ना है, इस तरह से बाहर की तरफ छोड़ना है, खींचना नहीं है। कई लोग क्या करने लग जाते हैं, ऐसे करने लग जाते, इनहेल करने लग जाते। ऐसे नहीं करना है, आपने छोड़ना है। इससे बैठे बैठे आपका वेट रिड्यूस होगा। जिनको हाई बीपी है उन्होंने ध्यान रखना है कि इसको बिल्कुल धीरे धीरे करना है, इस तरह से। इसका आपको बैठे बैठे 100% ये मीट गारंटी है कि वेट रिड्यूस होगा ही होगा। अगर आप डेली रूटीन में आप इसको 10-15 मिनट करते हो तो आपका वेट आप देखोगे दिन प्रतिदिन कम होता जाएगा। और शरीर में और भी कोई अगर बीमारी है, कोई छोटी मोटी, जैसे खांसी जुकाम रेशा, ये फेफड़ों के लिए, लंग्स को साफ करता है। कफ की जिनको प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करता है। डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो ठीक होती है। हार्मोनल इम्बैलेंस है वो इससे ठीक होते हैं। तो देखिए कितनी सारी बीमारियां सिर्फ बैठे बैठे हम ठीक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। कपाल भाती आपने अकेला नहीं करना है, वो वैसे ही होगा जैसे हम सब्जी रोटी के बिना खा रहे हैं या रोटी सब्जी के बिना खा रहे हैं। तो कपाल भाती के बाद आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करना है। इस तरह से नासाग्र मुद्रा बनाएंगे राइट हैंड की, ये अंगूठा और उंगली, और राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना आपने। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से डीप इनहेल करेंगे, लेफ्ट से डीप इनहेल, इसको उंगली से बंद करते हुए राइट, इसको देन राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल, दूसरी तरफ एक्सहेल। अब राइट नॉस्ट्रिल से ही इनहेल और उसको बंद करते हुए दूसरी तरफ आपने एक्सहेल। फिर से डीप इनहेल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, इसको बंद करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल। यहीं से इनहेल, दूसरी तरफ एक्सहेल। जहां एक्सहेल किया है वहीं से इनहेल, आंखें बंद रखते हुए डीप इनहेल, दूसरी तरफ एक्सहेल। यहीं से इनहेल, दूसरी तरफ एक्सहेल, रिलैक्स फील करते हुए। यहीं से इनहेल, दूसरी तरफ एक्सहेल, फिर से इनहेल, दूसरी तरफ एक्सहेल। एक तरफ से श्वास को भरना है, दूसरी तरफ आपने छोड़ देना है, और जहां छोड़ा है वहीं से भरना है और दूसरी तरफ आपने छोड़ देना है। इसी को नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। हमारी बॉडी की क्लींजिंग करता है, बॉडी के हर सेल को ये ऑक्सीजन देता है। सेल की कमी से ही शरीर में व्याधियां, बीमारियां पैदा होती हैं। जब हमारे बॉडी में कहीं पर भी ऑक्सीजन की कमी होती है, सांस तो यहाँ तक ही रह जाता है, यहाँ तक जाता ही नहीं है। तो डीप ब्रीदिंग प्राणायाम कपाल भाती ये आपकी आयु को बढ़ाता है, सौंदर्य लाता है, ब्यूटीफुल होता है इंसान। बहुत कुछ इनके बहुत बेनिफिट है। तभी मैंने आपको बोला है कि आप आसनों को डेली रूटीन में चाहे स्किप कर देना, लेकिन आपको प्राणायाम को स्किप नहीं करना है। ये जो मैं आधा घंटे का अभी बाद में हम प्राणायाम कर रहे हैं, इसको आप अपने जीवन का एक आधार बना लो। पूरे परिवार को बोलो कि प्राणायाम जरूर करना है। आसन स्किप कर दो आप चाहे, लेकिन प्राणायाम नहीं करना है। नेक्स्ट में आपको चंद्रवेदी प्राणायाम बताने लगी हूँ। ये उन लोगों के लिए जिनको हाई बीपी रहता है, ये उनकी एक तरह से दवाई है। आप करके देखिए। आप
आपने अपनी मेडिसिन छोड़नी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आप 10 मिनट रोज चंद्रवेदी प्राणायाम करोगे तो आपकी मेडिसिन खुद ब खुद छूटती जाएगी, आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। उसमें क्या करना है आपने, इसी तरह से सेम नासाग्र मुद्रा बनाएंगे, अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करना है इसमें, ये चंद्र, ये हमारा चंद्र नाड़ी है जो लेफ्ट साइड है हमारा, यहां से इनहेल करेंगे, लंबा गहरा श्वास भरना है, इसको बंद करते हुए राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल कर देंगे। लेकिन अब इस बार आपने यहां से इनहेल नहीं करना, आपने फिर से लेफ्ट से इनहेल, इसी से इनहेल करना है, लेफ्ट साइड से ही इनहेल करना है, दूसरी तरफ एक्सहेल कर देना है, फिर से लेफ्ट से इनहेल और दूसरी तरफ एक्सहेल, फिर से लेफ्ट से इनहेल, दूसरी तरफ एक्सहेल। इसको कम से कम आपने रोजाना, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, 10 मिनट करना है। लेफ्ट से इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल कर देना है, फिर से लेफ्ट से इनहेल करना है, राइट में आपने एक्सहेल कर देना है, उल्टा नहीं करना है। ये सूर्य बेदी है, इधर जो सूर्य नाड़ी है, अगर इसको एक्टिवेट कर दिया तो और बीपी हाई हो जाएगा, हमने लेफ्ट को करना है एक्टिव। तो ये हमारा चंद्रवेदी प्राणायाम था। अब लास्ट में हम करेंगे ओम का उच्चारण। 3 बार हम ओम का उच्चारण करते हुए इसके बाद हम योग का ये जो सेशन हमने आज जो अपने कार्यक्रम का आयोजन किया था इसको समाप्त करेंगे। 3 बार करेंगे हम ओम का उच्चारण, गहरा श्वास भरते हुए। कुछ देर के लिए अंतर्मन में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए अपने ईष्ट देव का ध्यान लगाएंगे, अपने गुरु महाराज को आप प्रणाम करेंगे फिर से। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हो। धन्यवाद। अभी हमने आपके साथ, मैंने आपको जो योगा करवाया है, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ भी आया होगा और आपको ये मेरा अच्छा भी लगा होगा प्रोग्राम। मैं अपने दिल से धन्यवाद करती हूँ स्वामी संत दास स्कूल का और सभी शिक्षक और विशेषकर जो प्रिंसिपल मैडम है उनको मैं थैंक्स करती हूँ। धन्यवाद। Thank you, Sonia Joshi ma'am, for sharing your basic fitness routine with all of us. And we definitely love it and we'll start doing it from tomorrow onwards. And now I would like to ask any staff member if he or she is willing to ask any question from ma'am. You are most welcome. So no one is asking, should I? हाँ जी, आप सभी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। Yeah. Sonia ma'am, the sequence of the asanas that matters in yoga, or in any sequence you can do the how that can do harm to the body if we are not following the right sequence? They are very harmful, obviously. मैं रोजाना देखती हूँ। सॉरी मेरे सेशन ज्यादातर हिंदी में ही होते हैं तो मुझे नो प्रॉब्लम मैम, आप बोल सकते हैं। हाँ नहीं हिंदी। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल। यस, तो बहुत हार्मफुल है। मैं रूटीनली देखती हूँ कि लोग पार्क में जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं। हमारे इंडिया की जो जनता है इतनी ज्यादा इनोसेंट है, उनको ये पता ही नहीं। अच्छा, इसका आंसर तो आपके पास ही है मैम। आप मुझे बोलो पहले, आपने जो डिग्री ली है, अगर मान लीजिए आपने तो डिग्री ली है, तभी आप यहाँ टीचर हो, पढ़ा रहे हो, है ना? तो मान लीजिए आपकी सिर्फ बुक पढ़ के कोई टीचर बन सकता है क्या?
एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक वन शुड गाइडेंस मिलनी चाहिए हमें। वन शुड गाइड ना। आप अपने स्कूल में ऐसे इंसान को टीचर बनाओगे मीन्स जिसने सिर्फ बुक पढ़ी है, एग्जाम नहीं दिया है। नहीं ऐसे नहीं, एग्जाम तो मस्ट है। एग्जाम से तो यही आंसर है मेरा। हाँ, ये आपने अपना आंसर, अब आपको इजीली समझ आ गया मैं क्या कहना चाहती हूँ कि कितना हार्मफुल हो सकता है अगर मैं आज ये किताब पढ़ के आपकी जगह पर खड़ी हो जाऊं। मुझे तो कुछ पता ही नहीं, ऐसी मैं घर से पढ़ के आ गई किताब, यहाँ पे मैं यूट्यूब से सीख लिया। मान लीजिए इंग्लिश की ही टीचर है तो मैं घर पे ही पढ़ ली किताबें, मैं आपकी मैम को आकर एग्जाम बोल दूं मैम मुझे रख लो, वो रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे ना, उसके काफी साइड इफेक्ट्स होंगे, उनको पता है, इसको पता ही नहीं कुछ। नहीं मैम आपने वैसे तो वही साथ सेम भी चीज हो बताया। रही है। हाँ, आपने साथ भी हाँ वैसे जी, तो बहुत बताया harmful है, कि बहुत नुकसान harmful हो सकता है, पर मेरा क्वेश्चन था कि एक राइट सीक्वेंस भी होना चाहिए कि हम स्टार्ट हमें किस आसन से करना चाहिए और एंड किस आसन पे करना चाहिए। सपोज हमने एक मिनिमम फिटनेस लेवल मेंटेन करना है, एक मिनिमम फिटनेस लेवल मेंटेन करना है, तो स्टार्ट किस आसन से करें और एंड कौन से आसन पे करें? स्टार्ट आप सूक्ष्म व्यायाम से करो, शॉर्ट एक्सरसाइजेस से। ओके, आप चाहे इसको 1 महीना करो, 2 महीना करो, और एंड पे वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने परफेक्ट हो रहे हो उसमें। ठीक है, तब आपको जो जैसे अभी मैंने अभी हमारे हाँ जी जो आपने मेरे ख्याल एक वो शवासन बताया, वो उस पे एंड नहीं होना चाहिए मैम। आई लर्न समवेयर के उसमें एंड होना चाहिए, जरूरी है, एंड उसी में होना चाहिए। हाँ जी, एंड उसी पे। हाँ जी, सूक्ष्म व्यायाम करो, कुछ भी करो, एंड उसमें होना चाहिए, प्राणायाम पे होना चाहिए, ओम के उच्चारण में। आपको जो अच्छा लगे, जैसे ओम का उच्चारण नहीं, कोई भी मंत्र आपको आता है, आपका भजन आता है, वो गाइए, रोज गाइए, क्लैपिंग कीजिए, हंसिए, खुश रहिए। ये एंडिंग इस पे होनी चाहिए। और मैम बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, बहुत सिंपल वे से बताया। आई होप कि सारे टीचर्स को बहुत ये हेल्पफुल होगा, और आई होप कि सारे टीचर्स इसको प्रैक्टिस करेंगे और अपना फिटनेस लेवल मेंटेन करेंगे। यस, और मैम आप पूछो, जिसको भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है प्लीज। थैंक यू मैम, मैं तो तभी सफल समझूंगी आज का। Yes, anybody else if would like to ask any question from Sonia Joshi ma'am? Yes, good evening ma'am. हाँ जी, good evening. Ma'am, is there any particular asana for this migraine problem if somebody is suffering? बिल्कुल है, माइग्रेन का पूरा पक्का इलाज है योगा में। आप उसमें भ्रामरी प्राणायाम करो, मेरे पास समय इतना नहीं है, घंटे में हम सभी कुछ नहीं कर सकते हैं। Anything easy which we can follow like नमस्कार daily? डेली आप भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, ओम का उच्चारण कीजिए। उससे भी इजी अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, शंख ले आइए घर में, शंख को बजाना शुरू कर दिए। जैसे आप पाठ पूजा करते हो, उसके बाद 3 बार शंख बजा दिया, उसमें डीप ब्रीदिंग भी हो जाता है, ध्वनि भी हो जाती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, नहीं तो भ्रामरी प्राणायाम 5 बार, भ्रामरी प्राणायाम, जिसको माइग्रेन पेन है उसको भ्रामरी प्राणायाम ओम का उच्चारण जरूर करना है, और कम से कम टेंशन लेनी है, हाइपर नहीं होना है, हर काम को धीरे धीरे करना है। लाइफ में आपने हाइपर टेंशन को खत्म करना है कि हमने टेंशन नहीं लेनी है कोई भी। Yes ma'am, it usually comes like when we take tension. You are right. Thank you ma'am, thank you so much. हाँ, yes. आपका तो काम ही थोड़ा टेंशन वाला है, टीचर्स का काम हम कैसे करते हैं? Yes ma'am, but we like when we attend such type of sessions, it is really relieves us from tensions. Mamta ma'am, I think Yes, you wanted to ask something. Yeah, sure ma'am. Thank you ma'am. Good evening ma'am. Ma'am, is there any particular this asana for low BP also, like you told for high BP? यस, लो बीपी के लिए आप कपालभाति कीजिए। मैंने बार बार बोला था ना कि जिनको हाई बीपी है वो धीरे धीरे करेंगे ऐसे। जिनको लो बीपी है ना, तो वो इसका 500 लगाएं, तो उनका बीपी नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा। ओके। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये चंद्रभेदी प्राणायाम, लास्ट में मैंने आपको हाई बीपी, क्योंकि मेन ज्यादा लोग हाई बीपी के पेशेंट्स होते हैं,
तो Yes, ma'am. चंद्रवेदी प्राणायाम मैंने इसलिए बताया था। तो जो सूर्यवेदी प्राणायाम है वो लो बीपी के लिए। आप लो बीपी के लिए सूर्यवेदी राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल, फिर से राइट से इनहेल, देन लेफ्ट से एक्सहेल। आप 10-15 दिन करके देखो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और स्पेशली मैं सभी को ये कहना चाहूंगी कि राइट डाइट को फॉलो कीजिए। कोई एक्सरसाइज कुछ नहीं कर सकती अगर आपकी डाइट गलत है। तो आयुर्वेद को फॉलो कीजिए। विटामिन सी के बेस पर आजकल आप प्लीज आंवला जूस पीजिए, आंवले को किसी भी फॉर्म में लीजिए। डाइट जरूर अच्छी रखिए अपनी, तभी योगा या कोई भी एक्सरसाइज तभी काम करती है। डाइट अच्छी लीजिए। Thank you, ma'am. थैंक यू। थैंक यू। Any more questions? Good evening, ma'am. I have a question. हाँ जी, गुड इवनिंग। Ma'am, I just wanted to ask the children के लिए, like for 12 to 15 years of age, are there any asanas like yoga asanas which can help them concentration? कंसंट्रेशन के लिए बहुत जरूरी है ताड़ासन, जो मैंने पहले किया था, वृक्षासन, त्रिकोणासन, ये तीनों आसन। कंसंट्रेशन के लिए उनको मेडिटेशन जरूर सिखाइए। पाठ पूजा जो हम बच्चों को नहीं सिखाते हैं, है ना। रूटीन में आप कोई भी धर्म को फॉलो करते हो, आप उसको एक बुक दो कि ये जरूर पढ़ना है तुमने, ठीक है। अपने धर्म के साथ जोड़िए, कोई भी धर्म है उसके साथ जोड़िए। उसको बोलिए कुछ देर के लिए तुमने 10-15 मिनट पाठ जरूर करना है रोज भगवान का। और मैम मेडिटेशन जिसको फिर बाद में धीरे धीरे। मैम जैसे मेडिटेशन को स्टार्ट कैसे करवा सकते हैं हम बच्चों में? मेडिटेशन को आप जबरदस्ती किसी से भी नहीं स्टार्ट करवा सकते। अभी मैं आपको बोलूं अंदर ध्यान लगाओ, आप लगा लोगे? नहीं लगा सकते हो। मन के जो विचार है वो रुकेंगे नहीं एकदम से। वही मैंने आपको पहले बोला कि लोग योगा करवाने लग जाते, ABCD सिखाते नहीं, सीधा जेड पे ले जाते हैं। तो इसी तरह से जो मेडिटेशन है वो जबरदस्ती से किसी के नहीं होगा। मन में विचार चलते ही रहते हैं, उनको बंद करने के लिए एक ही मेन बेसिक स्टेप मैं सभी को बताती हूँ कि घर में मंदिर सभी के बना होता है। कुछ देर के लिए बच्चों को बोलिए कि यहाँ बैठो, भगवान की कोई भी बुक दीजिए, जन कोई भी आपका मंत्र पाठ कुछ जो भी आपको आता है वो बच्चे को बोलिए कि शांत मन में रह के अपने परमात्मा को याद करना है। ये बहुत सिंपल वे है, रेदर देन कि हम बच्चे को ऐसे बैठाएं, उसने बैठना तो है नहीं, ठीक है। जब वो स्टार्ट कर देगा ना पाठ करना, तो धीरे 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 उसका ध्यान आप हमारे ऊपर ही लेकर देख लीजिए कि हम एकदम से आप क्या मेडिटेशन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। धीरे धीरे ध्यान लगना शुरू हो जाएगा ना जब आप भी अपने ऊपर ही लेकर चलो। थैंक यू। बंद कर दो। Hello, good evening, ma'am. Ma'am, I just want to ask, is there any other asana for increased height in kids except the Tadasana? ताड़ासन बेसिकली बहुत अच्छा आसन है। उसके बाद हस्तोत्थान आसन जो हम मैंने पहले किया था, my son इनहेल करके पूरा हाथ ऊपर है। My son used to do it the Tadasana, but that's why I'm asking. Okay, कितनी बार करता है वो? Step 50 times morning, 50 times in the morning. Na he used to do, and after that in the evening. Okay. तो ठीक है, उसके साथ साथ बाकी आसन भी करवाइए ना उसको, खड़े होने वाले सारे आसन। जैसे वो मैंने पहले किया था हस्तोत्थान आसन, पूरा हाथ ऊपर, देन पैरों की तरफ लेके जाएंगे, पूरा इनहेल करके ऊपर स्ट्रेच करेंगे, फिर पैरों की तरफ लेके जाएंगे। वो भी बहुत बेनिफिशियल है। Thank you. इंक्रीज करने के लिए। थैंक यू। Now I request all the teachers to please turn on their video so that we can capture this moment. Please turn on your videos for a while. Yes, turning on slowly. Mona ma'am, Bhavna Sharma ma'am, Harvinder sir, please. Sumiti ma'am. Just for a while.
Yeah, thank you. Thank you so much. And now I would like to take your leave. So with this, we come to the end of this session. Really, in this tough COVID time, we all realize the importance of yoga. So once again, I would like to thank Sonia Joshi ma'am, and I also thank ma'am principal to provide us this great opportunity. Thank you so much, ma'am. Thank you.